So I thought today we can just discuss some of the important points with an ECG, rhythm interpretation, and this would help any participant who is going to appear in the ACLS. Just remember, you do not need to be a cardiologist or a specialist to go through these rhythms. It's very easy to identify. We'll first go through the basics, and then we'll discuss some of the uh, individual rhythms. So the objective of the course and of the presentation is to recognize a normal sinus rhythm and to recognize 13 most common instances. If you read whenever you find a rhythm, you need to do something. You need to first of all identify the rate. Then we need to determine the regularity of the third is to assess whether the rhythm has a P wave in it, and then determine the PR interval. Good if we understand what the QRS duration is important. The first thing is to know, okay, when what is the rate. For the rate, we need to know the R wave. R wave is a big wave that you can easily recognize on an ECG strip. So we need to know there's a board line, and then you divide the number of the boxes. You divide 300 by the number of boxes, which means if it's the next RR falls on the first board line, it would be 300 divided by 1. The answer would be the rate would be 300 per minute. The second, it goes 300 by 2 boxes, so 150. 300 divided by 3 boxes is somewhere it's 100 per minute, and then it falls to 75, 60, and 50 regularly. So this is how you're going to pay. So every box 300 and 150, 100, 75, 60, and 50. 60 and 50 will fall in bradycardias, and 300 and 150 will fall in tachyarrhythmias, and 100 to 150 should be with the tachycardias. Then this is the approximate size. Then is the intervals. You can easily identify whether the RR interval is same all over. So there are only one rhythm or two rhythms that in which the rhythm is abnormal, and we will discuss about them shortly. Okay. So then the P wave, very important. P wave falls just before the QRX complex. It shows that the SA node is working normally. If the rhythm is generated from somewhere after the SA node, when the SA node is not working, the AV node, junctional, ventricular tachycardia, none of them have a P wave. So when even the AV nodal supply force an SVT, the supraventricular tachycardia, still the P wave is disappears, and that is a very important sign when you don't see a P wave. So if you have a P wave, normal QRS complex is sinus tachycardia all over. And if you do not have a P wave, it is a supraventricular tachycardia. It can be atrial flutter. It can be other ventricular tachycardias. We'll discuss about them shortly. So we need these four questions. Are these P waves? Are there any P waves? Will all look alike? So we have conditions in which they are abnormal. Not going to discuss in detail. Like we have the P wave occur at regular rate and the P wave before each complex. So we need to have one after. Then is the PR interval. So the PR interval is normally comes from 3 to 5 boxes, and normal is 0.12 seconds. The QS duration is also important because this signifies the rate, not really with the rhythms at the ACLS. So we'll shortly just go through it and so the sinus rhythm, the rhythm summary. If you see this kind of a rhythm, this is the rate is divide the R or difference to 300 and 50 and 100, 150, 300 by 3 is 100 is slightly lesser than that, falls at 90 to 95 beats per minute. It's regular, all of them fall at the equal distances. The P waves are there, all of them are normal. The PR interval is normal, it's less than 0.12 seconds, whereas duration is also normal, and then duration is a sound normal sinus rhythm. Normal sinus rhythm without a pulse would be pulseless electrical activity. Any sinus rhythm without a pulse is known as pulseless electrical activity, and you need to continue with the compressions in that cases. Usually it occur after the patient has gone to cardiac arrest, or maybe patient is the first presentation.
Okay, so this is normal sinus rhythm. Just in case it arises from the SA node, and it's the normal is 60 to 100, regular, normal P wave, P interval, it's not normal out there. So, how does it form? Why is it, why it can get disturbed? So the node, the sinus road appears from the sinus. Yeah, so the sinus rhythm appears from the sinus node. So sinus road एक rate के ऊपर उसको press कर रहा हो. And then atrial cells come in, they can cause atrial flutter, they can cause atrial fibrillation. Then AV junction can create a supraventricular tachycardia, and the ventricle cells called ventricular fibrillation or ventricular tachycardia, which is the abnormal tachyarrhythmias. Similarly, they can cause bradycardias. Sinus bradycardia is anything beats less than 60, and then so if what would happen if the SA node starts firing too fast, it forms too slow, it forms a sinus bradycardia, and it fires too fast, it forms a sinus tachycardia. What happens if atrial cells occasionally form a focus? So this forms a premature atrial contraction which comes with a sinus rhythm. But if they start firing continuously, so it then loops around in the same way, it forms atrial flutter. So अगर atrial flutter है, सो नैरो कॉम्प्लेक्स टेकार्डिया होगा. नैरो कॉम्प्लेक्स टेकार्डिया का मतलब यह है कि ये सुप्रावेंट्रिकुलर वेन्स है या एट्रिया से इसका ओरिजिन हो रहा है, लेकिन पी वेव इसके बीच में नहीं होती, आर वेव रेगुलर पड़ रही होती है, बिकॉज देयर इज अ लूप बन रहा है जो एक ही जगह से आ रहा है. सो वो लूप फॉर्म्स करता है किसी एक जगह के ऊपर और वहीं से दोबारा बार बार वो वहां से लीक करता जाता है. सो इसलिए से ये चीज बनती है. एंड देन और फिर वो ये वहां से करके ऐसे नोट पे आना शुरू हो जाता है और ये बार बार करने की वजह से एट्रियल फिल्टर बनाता है. अगर कंटिन्यूअसली जो सा है वो मुख्तलिफ जगहों से अगर एक रिदम बने, एट्रिया कंप्रेस कर रहा है, सो अगर एट्रिया के बीच में से ऐसे नोट को चुप करा दिया उसने उसने और एट्रिया के मसल्स जो से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जगह जगह से उसमें आ रहे हैं, मल्टीपल फोकस से आ रहे हैं, सो एट्रियल फिब्रिलेशन बनना शुरू हो जाएगी. तो देयर वुड बी एक्चुअली नो कॉन्ट्रैक्शन of the heart. So atrial fibrillation के बीच में there would be irregular rhythm, and there would be hardly कोई जाएगी deliver होगा, कुछ नहीं होगा deliver to the ventricle. So वहाँ पे atrial fibrillation बन जाएगी. फायर कंटिन्यूसली अगर होना शुरू हो जाएगा तो मल्टीपल माइक्रोट्रिप्स आ जाए, ये एक जगह से आ जाए, दोनों शुरू में एट्रियल फिब्रिलेशन होगी. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि देयर इज नो प्रॉपर कंट्रैक्शंस एज सच. हर जगह से एक चीज आती है, इज ट्रांसमिटेड टू एवी नोड और वो एवी नोड एक रिदम जनरेट करता है, व्हिच इज अबाउट. अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए, so if the AV junction is a place where it fires continuously from a looping re-entrant circuit, AV junction, so यहाँ से normal sinus rhythm would suddenly become a paroxysmal supraventricular tachycardia. There would be no P wave. So P wave नहीं होगी. So rhythm कैसा होगा? Narrow complex होगा. So tachycardia होगा, tachyarrhythmia होगा और regular होगा. But there would be no P waves. So somewhere rate 100 and 150, 160, and 170, but narrow complex tachycardia with no P waves. और अगर blocks हो जाएं तो वो भी हम थोड़ी देर में इसको देखते हैं. So PVCs are there, and अगर हम और नीचे आ जाते हैं, AV node से नीचे आना शुरू करते हैं, so rhythm अब बन रहा है because of preventricular contraction, but occasionally कहीं बनता है. So again normal sinus rhythm के बीच में आपको एक PVC नजर आती है और वो PVC बड़ी सारी approximately wide complex एक rhythm बनता है, दिखाता भी हूँ. लेकिन अगर ये हर होना ही ये शुरू हो जाए कि जगह जगह से बीपीसी आना शुरू हो, तो ज्यादा पेशेंट सडनली बिकम्स इनटू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. याद रखें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वेंट्रिकल का टेकियारिथमिया है और इसके बीच में कोई रिदम नहीं होता. इसके बीच में इरेगुलरली रेगुलर वो एक बीट सी होती है, बिल्कुल जैसे मछली तड़प रही होती है, एंड देयर इज नो पल्स. ventricular fibrillation के बीच में पल्स नहीं हो सकती, is one of the shockable rhythms. The other shockable rhythm is pulseless beat. So दो causes हैं cardiac arrest की, चार causes हैं cardiac arrest की, जिसमें से दो causes हैं जिनके साथ shockable हैं, दो non-shockable. Non-shockable में asystole है, which is a straight line, और दूसरी ये है कि जिसके बीच में there is pulseless electrical activity. A sinus rhythm, maybe bradycardia, maybe sinus tachycardia, maybe normal sinus rhythm, but there is no pulse. So pulseless electrical activity again.
दूसरी तरफ चले जाएं तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है जिसके बीच में जो शॉकेबल है, या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है, रेगुलर है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है, रेगुलर है, क्योंकि वेंट्रिकल से निकल रहा है तो वहां से निकलने वाला रिदम ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होगा। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होने की वजह से इट इज अ नॉर्मल यानी नॉर्मली पेस बना होता है, रेगुलर रिदम। सो कैन बी विद अ पल्स, कैन नॉट बी विद अ पल्स, सो सो इज नोन एज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब दूसरी तरफ आए तो साइनस रिदम की दो और चीजें आ गई, एक साइनस ब्रेडिकार्डिया आ गया, विच इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नॉर्मल, so there is a P wave, there is a QRS complex and there is a T wave, लेकिन रेट कितना है जी, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार, पाँच, छः, सात, आठ और सवा आठ, so 300 डिवाइड बाय 8, तो तकरीबन रेट 30 बीट्स पर मिनट बन रहा है। 60 से नीचे अगर बनता है तो दैट इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया। और अगर रेगुलरली फॉल कर रहा है, हर आर कॉम्प्लेक्स 8 के बाद फॉल कर रहा है, तो दिस इज नोन एज साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया। पी वेव्स नॉर्मल है, क्यूआर इंटरवल जो सा है वो नॉर्मल है, और साथ में क्यूआरएस ड्यूरेशन जो सी है वो 0.1 सेकंड्स है, वो भी नॉर्मल। सिर्फ रेट बन रहा है ब्रेडिकार्डिया के साथ आ रहा है। ट्रीटमेंट क्या है साइनस ब्रेडिकार्डिया? अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो ऑब्जर्व करें, सिम्टोमेटिक है सो स्टेबल और अनस्टेबल का ध्यान रखें। अगर स्टेबल है सो उसको आपने सिंपल एट्रोपिन दे देनी है, अगर अनस्टेबल है तो उस पेशेंट को आपने स्टार्ट करना है एट्रोपिन के साथ, और अगर एट्रोपिन से नहीं ठीक हो रहा तो 3 to 5 मिनट्स पे पेस करते जाएं। ब्रेडिकार्डिया इंप्रूव नहीं करता तो आप जो है पहले उसको एक आइनोट्रोपिक सपोर्ट स्टार्ट करें, नहीं होता तो उसको ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग की कोशिश करें, अगर उस पर भी कैप्चर नहीं होता तो नीड टू आस्क फॉर कार्डियोलॉजी, तो आपकी हेल्प करे, आप खुद नहीं भी उसको कर सकते। सो लेस देन 60 का आपको मैंने बता दिया। अब ये चीज देखिए जी, ये अगर इस तरह का रिदम आ रहा है तो ये रिदम के बीच में आप देखेंगे आर आर इंटरवल जो सा रेट कितना है, तो आर आर इंटरवल 2 के बाद फॉल कर रहा है तो तकरीबन 150 बीट्स पर मिनट पे, सो इज अ टेकीकार्डिया, is a sinus tachycardia, is it a sinus tachycardia or is it a sinus tachyarrhythmia, which would be atrial fibrillation, atrial flutter, SVT, और ये तीन आपके पास आ जाते हैं। सो अगर आप इनको देखें ध्यान से, सो ये फॉल तो कर रहा है 2 के बाद, सो 150 बीट्स पर मिनट का है, रेगुलर है तो रेगुलर आता है, तो इसके बीच का मतलब ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन बीच में से आउट हो जाता है। और पी वेव आ रही है तो एसवीटी भी आउट हो जाता है, एट्रियल फ्लटर एक रिदम पीछे रह जाता है, या साइनस टेकिकार्डिया या एट्रियल फ्लटर। अब ये सॉ टूथ नहीं है, इसमें नॉर्मल पी वेव आ रही है, फिर क्यू वेव आ रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फिर टी वेव आ रही है, इज साइनस टेकिकार्डिया। बीट इज 130 पर मिनट, उसके अलावा उसके बीच में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है। इस पेशेंट को शॉक नहीं देना है, इस पेशेंट ये नॉर्मल साइनस रिदम है तो सिर्फ फ्लूइड से इसको मैनेज करना है। अगर इससे आप चले जाएं तो अब दूसरा रीजन देखें, एक में आपको एक वीपीसी नजर आ रही है, विच हमने जैसे जिक्र किया कि जी साइनस टेकिकार्डिया है, साइनस ये तो साइनस रिदम है, और साइनस रिदम के बीच में एक वेंट्रिकल जो है उसके बीच में से एक निकल रहा है, सो वहां उसको आपने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दे दी, जिसके बाद रिदम एब्नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, लेकिन अब आप आगे चलें, सो अगर साइन जो नॉर्मली जो है वो एस एन ओ से सिग्नल निकलता है, एवी ब्लॉक पे जाता है और फिर वो हार्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन एबनॉर्मल जो है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और ये जो वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है ये एक आपको वहां पे एरिथमिया दे सकता है। साइनस रिदम की भी हमने बात की जी, प्रीमेच्योर बीट्स की भी बात की, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की बात की, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ये से साइनस रिदम चल रहा था, इसके बीच में कुछ प्रीमेच्योर बीट्स आ गई, एट्रियल भी हो सकती है, वेंट्रिकुलर भी हो सकती है। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एक एट्रियल बीट थी जिस जो बार बार घूमना शुरू हो गई, और वहां से उसने एवी जंक्शन को फॉलो किया और वहां से एसवीटी बन गई, और निशानी क्या है, इज अ नैरो इज अ टेकिकार्डिया, इज नैरो कॉम्प्लेक्स, इज रेगुलर, ये तो तीन चीजें सारों के साथ आ गई, लेकिन देयर इज नो पी वेव। सो सिर्फ एट्रियल फ्लटर में और सुप्रावेंट्रिकुलर कार्डिया में दो में आते हैं, लेकिन एट्रियल फ्लटर तो बड़ा अच्छा साटूथ साइड पकड़ा जा सकता है, तो इसके अंदर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ढूंढना बड़ा आसान रहता है। वेंट्रिकुलर अरिथमियाज ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होती हैं, सो ये एक निशानी है which differentiates them from, इसके साथ फिर आगे पल्स या नहीं पल्स दोनों चीजें हो सकती हैं। सुपरवेंट्रिकुलर अरिथमियाज आपने डिस्कस किया कि जी एट्रियल फिब्रिलेशन है, लेटर अब ये एट्रियल फिब्रिलेशन देखिएगा,
इसके बीच में जो है पी वेव्स तो आ रही हैं, पी वेव्स आ रही हैं, लेकिन रिदम रेगुलर नहीं, आर इंटरवल। सो द रेट अगर ज्यादा है, पहली बात क्या हुई कि पेशेंट हैज टेकीरेथमिया। सेकंड चीज आई कि नैरो कॉम्प्लेक्स टेकीरेथमिया। तीसरी चीज है रिदम इज इरेगुलर। सो देयर इज ओनली वन विद सच रिदम, दिस इज नोन एज एट्रियल fibrillation. Divide them into stable and unstable. Stable, observed, unstable, which means कि चार साइन में से कोई चीज हो सकती है जिसके बीच में हाइपोटेंशन है, चेस्ट पेन है, सजेस्टिव डायफरेसिस है और हार्ट फेलियर के साइन है। सो इन चार में से कोई एक चीज, कोई भी एक चीज, हाइपोटेंशन सिर्फ है, सो इसका मतलब ये है कि अनस्टेबल है। सो इसको जॉनसन आप कार्डियो वर्ड करेंगे, मेडिसिन के लिए नहीं जाएंगे। अगर वो नॉर्मल है तो उसको आप मेडिसिन के थ्री पे फार्माकोलॉजिकल कर सकते हैं, मैनूवर कर सकते हैं। अनस्टेबल है तो गो फॉर कार्डियोवर्जन इन दिस केस। जब आप इसके साथ अगला देखिएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन आप डिस्कस कर ली, डिविएशन होगी, और फिर उसके बाद आगे अब ये देखिएगा, नीड टू आइडेंटिफाई इज वेरी सिंपल नाउ। इज रेट कितना है, ये रेट पड़ रहा है 1 2 3 4 के बाद। सो 300 डिवाइड बाय 300 डिवाइड बाय 5, तो इज 75। तो लेकिन पल्स जो सी है वो इससे कहीं ज्यादा आपको फील हो रही होगी, कुछ पल्सेस डिलीवर हो रही हैं, बाकी नहीं हो रही। सो रेट वुड बी 70 बीट्स पर मिनट। लेकिन और रेगुलर भी होगा, अगर आप रेगुलरिटी देखते हैं तो वो रेगुलर भी होता है। लेकिन अब आप पी वेव देखें तो देर इज फ्लटर वेव्स रादर देन पी वेव्स। सो पी वेव्स की जगह अगर फ्लटर वेव प्लेस हो गई, सो शॉर्ट अपीयरेंस आ गई, तो दिस इज नोन एज एट्रियल फ्लटर। सो आप पल्पेट कर रहे होंगे उस पर सिर्फ 70 आ रही होगी, लेकिन जब आप रिदम स्ट्रिप निकाल रहे होंगे तो उस पर ये इस तरह की चीज आ रही होगी जिसके अंदर बहुत। Again, how can you manage? You need to divide them into stable and unstable. अगर स्टेबल है पेशेंट तो उसको आप मेडिसिन दे सकते हैं, और अगर आप एडिनोसिन दे सकते हैं, आप मैनूवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है चाहिए तो इसके लिए आप फिर नीड टू गो फॉर कार्डियोवर्जन, अनस्टेबल कार्डियोवर्जन। तीसरा रेट देखिए जी, ये पैरल अगर ये इसमें अगर आप अब तो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि इसके बीच में अगर एक पी वेव है, रेट कितना है 1 2 3 4। सो 4 के बाद पड़ रहा है 1 2 3 4, तो ये 4 के बाद 4 के बाद पड़ रहा है, तो 75 बार बीट्स मिनट पे जा रहा है। आगे जाते हैं तो सडनली ये 74 की जो थी वो बन जाती है 1 2, सो तकरीबन 148 की करीब रेट बन जाता है। सो देर आर पैरोक्सिज्म्स of sinus tachycardia, right? Sinus tachycardia. So pulse normal चलते चलते पल्पेट करने हैं तो रेगुलरिटी सिर्फ रेट बढ़ा है लेकिन पर रेगुलरिटी पी वेव्स डिसअपीयर हो जाती हैं। जब आप नॉर्मल साइनस में देख रहे होते हैं तो आ रही होती हैं, लेकिन जैसी रेट तेज हुआ साइनस टेकार्डिया अगर है तो पी वेव आएंगी ये भी। लेकिन अगर वो एसवीटी में चला जाता है तो एक रैपिड रेट के साथ पी वेव्स डिसअपीयर हो जाती है। सो पीआर इंटरवल कौन सा है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि पी वेव नहीं आ रही है, तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो क्या ट्रीटमेंट करते हैं? अगेन ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी नैरो कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया के साथ से। सो स्टेबल और अनस्टेबल डिवाइड करेंगे, नैरो कॉम्प्लेक्स होंगी, पैरोक्सिज्म्स होंगे, और पी वेव, अब इसमें पी वेव नहीं है, और रेट जो सा है वो ज्यादा ही आएगा जैसा कि जितना के असल में रेट है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पे आ जाए, अब हम वेंट्रिकुलर रिदमियास की बात कर रहे हैं। अगर ओरिजिन ऑफ रिदम इज फ्रॉम वेंट्रिकल्स तो ये ब्रॉड कॉम्प्लेक्स होंगे। बाकी सुपरवेंट्रिकुलर अभी तक जो हमने डिसाइड किया, अब इसको दोबारा समराइज करें। यू हैव अ पेशेंट व्हिच हैज अ रिदम व्हिच डज नॉट हैव, जो पेशेंट डज नॉट हैव अ पल्स आर डिवाइडेड इनटू कार्डियक अरेस्ट। फोर कॉजेस, टू टू shockable, two non-shockable. Two non-shockable are asystole and PEA, no pulse, but there is a normal sinus. दूसरे पे चले जाए, shockable cardiac arrest, एक is ventricular fibrillation, another is ventricular tachycardia without pulse, so pulseless VT. So ये जो आप ventricular arrhythmias देख रहे हैं, ये basically both these can be a cause of cardiac arrest, very serious, and both can be cardiac arrest. Both have origin from the ventricular ventricles, और इसके बीच में से हमें अब differentiate करना है, is very simple. So you have broad complex tachycardia, normal sinus rhythm नहीं है, there would be a pulse,
there is no sort of P wave QRX complexes, which means कि ऐसे नोड नहीं है, AV नोड नहीं है, P waves भी नहीं आ रही और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स रिदम है। रेट कैसा जी? टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया के बीच में क्या साइनस टेकिकार्डिया? नो, इज नॉट साइनस टेकिकार्डिया, क्योंकि नॉर्मल साइनस रिदम नहीं है। कॉम्प्लेक्स नैरो है, ब्रॉड है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है। रेगुलर है, इरेगुलर? रेगुलर है। सो रेगुलर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया जो है वो एक ही है, दैट इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगर तो पल्सलेस है तो शॉक करेंगे, और अगर वो विद पल्स है तो अगेन डिवाइड करेंगे इनटू शॉकेबल, इनटू स्टेबल एंड अनस्टेबल। सो ये रिदम याद रखिएगा, ये ब्रॉड कॉम्प्लेक्स हैं, रेगुलर हैं, बिल्कुल एक जैसे ही पढ़ रहे हैं, एक ही डिस्टेंस के ऊपर आ रहे हैं। सो 100, 150, 100, 140 का रेट है, लेकिन there are no P waves, but there are broad complexes. So rate is 160 per minute, regularity irregular, P waves none, peer interval none, duration wide, interpretation is a ventricle. Can be with pulse, can be without pulse. Without pulse, you need to give a shock as soon as possible, और फिर इसको defibrillate करना है if there is no pulse, pulseless VT जैसे ventricular fibrillation के लिए करते हैं। लेकिन अगर पल्स है इसके साथ तो फिर इसको आप स्टेबल अनस्टेबल टेकीरिथमिया के तौर पे ट्रीट करते हैं। ओके जी, अगर आप इससे आगे चले जाएं, अगर मल्टीपल एरिया से रिदम निकल रहा है तो दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर fibrillation. So there are no pulses, no pulse palpable. Rate, there is no rate on the monitor. There is no complex forms, broad complex or narrow complex. So the irregular movement of जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके बीच में बिल्कुल कोई भी रेगुलरिटी नहीं आती। So there is no rate, there is no regularity, there is no P wave, there is no PR interval, there is no QR duration, and interpretation is ventricular fibrillation. याद रखिए, ventricular fibrillation is the only rhythm which does not have a pulse at any cost. VT के अंदर हो सकता है VT with pulse हो, without pulse हो। सुप्रावेंट्रिकुलर सारे के सारे जो हैं विद पल्स होते हैं, ब्रेडियरिथमियाज विद पल्स होते हैं, लेकिन एक रिदम है कि जिसके बीच में पल्स नहीं होता, जो साइनस भी नहीं। सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के साथ शॉकेबल रिदम है और इसमें पल्स नहीं होती है। जब इससे आप आगे चलते हैं तो जी ये हमारे पास में दूसरी तरफ चलेंगे। सो हमने कहा कि जी साइनस रिदम था, साइनस रिदम में पहले प्रीमेच्योर बीट्स आना शुरू होती हैं। जब बीट्स ज्यादा हो जाती हैं तो चांस ये होता है कि वो ऐसे नोट को सुप्रेस कर दें और साइनस रिदम कन्वर्ट्स इनटू सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये दोनों तीनों रिदम्स जो से हैं ये नैरो कॉम्प्लेक्स। जब यहाँ से आप नीचे का चले जाते हैं वेंट्रिकल के ऊपर, सो वेंट्रिकल का रिदमिया जो सा है दैट इज ब्रॉड कॉम्प्लेक्स, और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स के साथ जो सा है वो चीजें रहती हैं। दूसरी तरफ चल जाए, एक तो आपने टेकीरिथमियास की तरफ कर, अब वापस आ जाए साइनस रिदम, टेकीकार्डिया, टेकीरिथमिया। टेकीरिथमिया के बीच में नैरो कॉम्प्लेक्स, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और एसवीटी। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीरिथमियास, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। there is a tachycardia but there is no pulse, ventricular fibrillation। अब आप दूसरी तरफ आ जाए, साइनस रिदम, साइनस रिदम से गए साइनस ब्रेडिकार्डिया में रेट लेस देन 60, और इसके बाद आप चले जाते हैं फर्स्ट डिग्री, दो तरह के सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक्स। अगर आप फर्स्ट डिग्री की बात करें तो फर्स्ट डिग्री की जो सा है रिदम आप इसके बीच में देखें, दिस इज अब इसके बीच में दिस इज अ नॉर्मल। अब आप खुद इवेल्युएट करें कि यहाँ देखें कि ये एक आर और ये आर के दरमियान जो है वो 1 2 3 4 और 5 5.5 का फर्क पड़ता है। तो डिवाइड 300 बाय 5 और 6, सो इज तकरीबन 60 50 60 बीच में रेगुलर। सो कैलकुलेट करें तो इज रेगुलर। और उसके बाद पी वेव्स नॉर्मल हैं, पी वेव्स नॉर्मल हैं, पी आर इंटरवल कैसा है, इज प्रोलॉन्ग। सो पी आर इंटरवल सारों के बीच में प्रोलॉन्ग है, एंड दिस इज known as the first degree wave। साइनस ब्रेडिकार्डिया में अगर पी आर इंटरवल बढ़ जाएगा, सो दिस इज नोन एज, कोई मिसपीट नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज नोन एज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। बाकी रेट भी ठीक रहता है, रिदम भी कम आ रहा होता है, लेकिन एब्नॉर्मल रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक्स करते हैं। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक्स जो से हैं वो इंटरेस्टिंग है, उसमें दो तरह के आते हैं। अब इसके बीच में अगर आप नोट करें, लेट्स स्टार्ट विद द रेट। सो आपने कैलकुलेट किया ये, फिर आपने कैलकुलेट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ये नॉर्मल है, पर 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नियरली डबल हो। सो ऐसा रिदम जो सा है इट विल गिव यू एन an irregular rhythm। एक में स्पीड आ रही है, but interestingly this would be regularly right। दूसरा जो सा था, दूसरा था irregularly irregular rhythm था, but this is a regularly irregular rhythm। this is because कि पी आर इंटरवल जो है वो रेगुलर पी वेव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है, बढ़ना शुरू होता है पी आर इंटरवल करते करते। सो यहाँ से एक बॉक्स है, यहाँ पे 1.5 है, और यहाँ में स्पीड कर दी। सो ये दिस इज द काइंड ऑफ एवी ब्लॉक जिसके बीच में ट्रांसमिशन ऑफ द पी वेव नहीं होती। दिस इज नोन एज सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 1। सो दोबारा देख लीजिएगा। सो यू हैव अ साइनस रिदम, यू हैव अ साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया के बाद यू हैव एवी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के बीच में सिंपल पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रही है, बाकी रेट में कोई फर्क नहीं है सच पड़ रहा, रिदम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेट ब्रेडीज में जा रहा है। और अगेन ट्रीटमेंट सारे के सारे ब्रेडीज जो है ना, उनका ये है कि स्टार्ट आप एट्रोपिन से करते हैं, 3 डोजेज जो है ना आप एवरी 3 to 5 मिनट देते जाते हैं। साइमल्टेनियसली नी ब्लड प्रेशर होता है मेंटेन, तो आप उनके ऊपर टॉप अप करते हैं विद आइनोट्रोपिक सपोर्ट, विद ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग एंड देन ट्रांसवीनस पेसिंग। दूसरी तरफ देखें कि अब इसके बाद क्या होगा अगर इससे भी आगे चले। सो अब हुआ क्या है जी कि अब ये भी रिदम है, इसके बीच में देखें रेट ये पड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.5। तो 300 के बाद हमने डिवाइड किया तो ये बड़ा ही तकरीबन 40 बीट्स बना था। अगला देखिए। सो अगला भी जो सा है वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में पड़ा। So now this is the regular rhythm. There is a missed beat, but it is regular on ECG। पल्स देखूंगा तो पल्स 20-30 आ रही है, बहुत पतली सी आ रही है। लेकिन जब पी वेव्स देखते हैं तो पी वेव्स हैं, लेकिन उसके बाद एक मिस है, एक आ रही है उसके बाद ठीक कंप्रेस जाता है, फिर गायब हो जाती है, फिर ठीक आता है, फिर गायब हो जाती है। तो इस तरह से ये रेगुलरली बीट रेगुलर मिस बीट हो रही है। पिछले में भी रेगुलरली मिस हो रही थी, लेकिन उसके बीच में ग्रेजुअली पीआर इंटरवल बड़ा होता जाता है और करते 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 एक ड्रॉप करता है। जब जो मोबिट्स टाइप 2 या एवी ब्लॉक सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप 2 है, तो इसके बीच में एक जा रही है दूसरी जा रही है। सो अब ये 1:2 का ब्लॉक है, 1:3 का ब्लॉक है कि कब भी ब्लॉक करता है। पीआर इंटरवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ठीक पड़ती है और उसके बाद सेकंड होती है ना वो है, क्योंकि ओकेजनल वी पी वाव इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड और वो ट्रांसमिट नहीं होता। कंडक्शन इज ऑल और नथिंग। सो दिस इज मोबिट्स टाइप 2 या सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक टाइप। तीसरे पे देखिए, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिदम। रिदम क्या है, पल्स जो सी है ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इज अ वाइड कॉम्प्लेक्स। सो वाइड कॉम्प्लेक्स होने की वजह से क्या है कि जी अभी आपको बताते हैं। सो ये पल्स आपको फील होती है। व्हाट इज अबाउट पी वेव, ये पी यहाँ पड़ी है, इसके आगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये पी वेव पड़ी है, इसके आगे है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे भी नहीं है। सो ये इस तरह की चीज है, लेकिन जो पल्स कैलिब्रेट करते हैं तो वो रेगुलर। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो से हैं वो अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू हो। सो पी वेव हर 100 बीट्स के ऊपर पढ़ रही है, 100 बीट्स वो रेगुलर है। लेकिन जो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो अपनी जगह पे पढ़ता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो पीआर, वो दोनों एट्री अपनी मर्जी से पंप कर रहे हैं और नीचे हार्ट जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं। ब्रेडी कार्डिया है कि वो जा ही नहीं रही, आगे ही नहीं जा रही रिदम, तो इसलिए बहुत से जो है वो नॉर्मल आ जाते हैं। सो दिस इज नोन एज थर्ड डिग्री ब्लॉक। ट्रीटमेंट क्या है, अगेन सेम ट्रीटमेंट उसके साथ करना है, उसमें बीच में कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके जी, थैंक यू। एक इन्हीं रिदम्स को हम मैं आपको दिखाता हूँ, इन रिदम्स को हम दूसरी तरफ से देखते हैं। ये जो हमारे पास एक, मैं इसको मैं रिदम्स को ओके जी। सो मैं शेयर कर लेता हूँ दोबारा से, स्क्रीन शेयर करते हैं जी। स्क्रीन शेयर हो रही है, ओके स्क्रीन शेयर हो रही है, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। सो इसको हम यहाँ ले जाते हैं,
करेंगे इसको शेयर करते हैं। सो अब आप स्टार्ट करते हैं रिदम्स जो रेगुलरली एसी लिस्ट में इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये जो पहला रिदम मैं प्रेस कर रहा हूँ दिस इज नोन एज ए सिस्टम। क्या होगा? इज अ स्ट्रेट लाइन। ट्रीटमेंट क्या होगा स्ट्रेट लाइन का? स्ट्रेट लाइन को ट्रीटमेंट ये होता है यू नीड टू कंटिन्यू विद द कंप्रेशंस ओनली, नॉन शॉकेबल कार्डियक अरेस्ट की रीजन है, और इन पेशेंट को सिर्फ अब आप कंप्रेशन देते हैं और साथ में जो है ना वो एपिनेफ्रिन का इन्फ्यूजन साथ साथ देते जाते हैं। दूसरा चीज देखें जी। सो हम वापस इस पे आते हैं नॉर्मल, ये अब देखिएगा। सो दिस इज अ नॉर्मल साइनस रिदम। मेरा ख्याल ये कि नहीं चेक की ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा।